Hello everyone, I am Neha Garg, a company secretary by profession. I welcomes you all to my channel Magical Law. Today we'll discuss about the topic Indian Evidence Act. In this chapter, we will discuss what is the meaning of evidence, where the evidence is produced, what kind of a document, a fact or a statement can be included in the evidence. So let's get started with the topic. First of all, we will discuss where it is applicable. Indian evidence is applicable to whole of India. Earlier, it was applicable to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. But with the removal of Section 370, it is applicable to whole of India. So, to know what is Evidence Act, we should know the word evidence. What does the fact? What does the word evidence means? Evidence means any kind of statement, yeah, all statement which the court permits or requires to be made before it by witnesses. Now, any statement, whether oral or written. We will discuss about the oral statement first. Now all the statements which the court permits, ऐसी हर एक statement जिसको court allow करती है, permits करती है, जो कि इसके सामने बनाई जानी चाहिए, requires to be made before it by the witnesses in relation to the matter of fact. Now the important word is fact. What is fact? We'll discuss it later. Fact under inquiry. Such statements are called oral statement. यानी कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसे आप बोलकर कोर्ट के सामने बताते हैं. कोर्ट कौन बताता है कोर्ट के सामने? कोई भी विटनेस या पार्टी इटसेल्फ. फर्स्ट ओरल स्टेटमेंट इज ऑलवेज मेड बाय द विटनेसेस. तो एनी स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस बिफोर द कोर्ट for the inquiry to prove the inquiry is known as oral evidence. Now next point is legal documentary evidence. All document produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. Now we will discuss the two types of evidence, oral evidence and the documentary evidence. Now what is oral evidence and what is documentary evidence? Oral evidence which can be stated in the court, and the documentary evidence any fact, any statement, any information which is submitted to the court in written form, where it is written on any paper, on any paper, in e-drive, in a hard disk, in e-form, or on any substance something is written is a document. So to proceed further, we should know the fact. We should know the word fact. What do you mean by fact? Fact means anything, state of thing, relation of thing capable of being perceived by senses. It means anything which you can see, anything which you can hear, anything which you can taste, anything which you can sense by your skin, by your body. Anything which you can feel is a fact. For example, a car is going to buy you. एक कार जो है वो आपके साथ आपके पास से गुजरी बहुत स्पीड से. यू कैन फील दैट स्पीड बाय योर सेंसेस. सो इट इज़ अ फैक्ट दैट कि वो कार बहुत तेजी से जा रही थी. इट्स अ फैक्ट. सेकेंड पॉइंट इज एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज अ कॉन्शियस. जब हम बात करते हैं एविडेंस एक्ट की, तो समटाइम्स आपने कभी देखा होगा कि ऐसा होता है कि किसी इंसान की मेंटल कंडीशंस ठीक नहीं है और वो कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ रॉन्ग बिहेव कर देता है. तो उसके टाइम पे अगर आपको पता है कि उस इंसान की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर वो जो मेंटल कंडीशन है इट इटसेल्फ अ फैक्ट दैट अ पर्सन इज नॉट कॉन्शियस, या फिर एनी कॉन्शियस पर्सन हु इज अवेयर ऑफ दैट मेंटल कंडीशन इज ऑल्सो अ फैक्ट. यानी कि फैक्ट होने के लिए किसी भी ट्रांजेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है. अगर वो ऑलरेडी है एंड यू नो दैट फैक्ट, इट्स अ फैक्ट. फैक्ट इज नॉन एज लिटरली द फैक्ट मीन्स तथ्य. Tathya means any activity, any process, any work which is done. So facts can be relevant or irrelevant. To proceed with further relevant or irrelevant, I hope you know the meaning of fact. So facts which are relevant and facts which are not relevant. How will you describe the facts are relevant or not relevant? If your facts related to the facts in issue. Facts in issue मतलब ऐसा फैक्ट जिसकी वजह से इशू चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए एंड बी टू फ्रेंड्स हैं. ए ने बी को रॉब किया. ए ने बी को रॉब किया. तो जो फैक्ट इन इशू होगा वो ये होगा कि क्या ए ने बी को रॉब किया है. इफ ए रॉब बी, if it is proved, then it will become a crime, it will become a wrong. Let A rob B, it is a society, it is a ethical wrong.
बट द फैक्ट इज इशू इज वेदर ए रॉब बी, जिसकी वजह से आपका पूरा एंटायर केस चल रहा है, दैट इज अ फैक्ट इन इशू. वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द अनदर one is connected with the another in any of the ways referred to in the provision of this act relating to the relevancy of facts. तो किसी भी फैक्ट को कब रेलिवेंट कहा जाएगा? अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए रॉब बी, बी हैज सम प्रीशियस stones with him and B showed it to A, and B showed it to A. A has the perfect reason to rob it from B just because A know the fact that B has some special precious stones. तो A उन stones को B से चुरा सकता है. उसके अगर किसी को ये पता है कि B ने A को वो stones दिखाए थे, तो ये एक relevant fact है कि A के पास ये knowledge थी कि B के पास कुछ precious stones हैं, and it's a fact in itself and it can be said a relevant fact. Relevant fact also deals with the section 3 of Indian Evidence Act. Relevancy. Now further we will discuss about, we have discussed what is relevancy. Now we'll go whether relevancy is legal or logical. Anything which is relevant can be legal or logical. What is legal and what is logical? For example, A murdered B. A ने B का मर्डर किया है, ये एक फैक्ट इन इशू है. ए बी के घर गया था, ए बी के घर गया था. यहाँ हमारी लॉजिकल थिंकिंग क्या कहती है? ए बी के घर गया था तो हो सकता है कि ए ने बी को मारा हो. इट कैन बी लॉजिकल, इट इज़ लॉजिकल, बट इट कैन बी लीगल और नॉट लीगल. लीगल ये कब होगा? जब वो लीगली प्रूफ हो जाएगा कि ए ने बी को मारा. ए बी के घर गया तो हमारा माइंड अपने आप से ये प्रिजम्पशन करता है कि ए ने बी को मारा होगा, तो दैट इज लॉजिकल. If your fact is logically relevant, it doesn't mean that it will be legally relevant also. But A B के घर गया और A ने B को poison दे के मारा. It is proved, legally proved by postmortem report कि A के fingerprints B के घर पाए गए. A के पास poison था जो कि A ने B को दिया. So that fact is legally relevant. That legally relevant fact is also logical relevant. So from this point we can discuss one more thing, that all logical facts are not necessarily legal relevant, but all legally relevant facts are compulsory logical. We'll discuss this. All logical relevant facts are not legally relevant, but all legally relevant facts are logically relevant. So next, what is the relevancy of fact? How to check relevancy of fact? We know that relevancy of fact is when one fact is connected with the another. Now, how can we say that some fact is relevant? There are three conditions to check that fact is relevant. The first one is res gestae. Second one is facts constituting the occasion or effect or opportunity or state of things for the occurrence of the fact to be proved, whether it be a fact or another relevant fact. Motive, preparation, and previous or subsequent conduct. Now, what is res gestae? Let's start with the res gestae. What is res gestae? Res gestae is a Latin word in English which means things done. So, what is the point of mentioning res gestae here? How it will relate with the relevancy of facts? So, res gestae is a statement. Res gestae is a word which describes any spontaneous transaction. Suppose A B को बहुत बुरी तरह से सड़क पर मार रहा है किसी हैवी ऑब्जेक्ट से. A is beating B. So जो बाई स्टैंडर्ड्स जो हैं वहाँ पे जो लोग वहाँ खड़े हैं एज अ विटनेस जो देख रहे हैं कि A B को मार रहा है, तो जब कभी क्वेश्चन होगा, जब कभी इंक्वायरी होगी, तो जो वहाँ खड़े लोग हैं वो एग्जैक्टली वही बात बताएंगे जो कि उन्होंने वहाँ देखी. बिकॉज दे कैन सी, दे कैन हियर, दे कैन फील व्हाट इज गोइंग अराउंड, व्हाट इज हैपनिंग. सो दैट इज res gestae. व्हेन यू गिव योर स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, ए बी को मार रहा है, ए बी को चेन से मार रहा है, ए ने बी के सर पे पत्थर देकर मारा, या फिर ए ने बी के सर पर किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट से वार किया, तो दैट इज अ res gestae. Res gestae इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स थिंग्स डन. तो जो विटनेस होंगे वो क्या बताएंगे कि क्या काम हुआ था. Res gestae is used where there a spontaneous transaction is done. Res gestae आपको टाइम ही नहीं देता है कि आप उसके ऊपर स्टोरी बिल्डअप करें. जब आप res gestae की बात करते हैं तो
ऑन द स्पॉट जो ट्रांजेक्शन हो रही है, ऑन द स्पॉट आपसे जो ओपिनियन मांगा जाता है वही रेस टेस्टी कहलाता है। वहीं से हमारे विटनेस बनते हैं और वही विटनेस हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओकेजन, इफेक्ट, opportunity, state of things for the occurrence of the facts to be proved, whether it be a fact or another relevant fact. अब बात करते हैं, अर्लियर वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक एग्जाम्पल ए रॉब बी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ए ने बी को रॉब किया, बी के पास कुछ प्रीशियस स्टोन्स थे जो कि बी ने शो ऑफ किए टू ए। तो यहाँ पे एक ओकेजन क्रिएट हो गया है। बी के पास प्रीशियस स्टोन्स है, बी ने उन प्रीशियस स्टोन्स को शो ऑफ किया, ओकेजन बनाया एक। उसका इफेक्ट क्या हुआ, ए के माइंड में क्राइम क्रिएट होना शुरू हो गया कि मैं इन प्रीशियस स्टोन्स को अपने पास लेके आता हूँ। जैसे ही ए को अपॉर्चुनिटी मिली और जैसे ही ए को पता चला कि वो स्टोन्स कहाँ रखे हैं, कैसे हैं, स्टेट ऑफ थिंग्स उसे मिला, तो उसने उन स्टोन्स को चुरा लिया। ऑक्यूरेंस ऑफ फैक्ट्स मतलब काम का हो जाना, फैक्ट का हो जाना। फैक्ट टू बी प्रूव्ड मतलब वो वाला फैक्ट जिसे प्रूव करना है, क्या ए ने चोरी की, क्या ए ने वो स्टोन्स चुराए, दैट इज द फैक्ट टू बी प्रूव्ड। तो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन करना जो आपको ओकेजन दे, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी, स्टेट जो दे, किसके लिए, ऑक्यूरेंस ऑफ द फैक्ट टू बी प्रूव्ड, दैट इज अ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। अगर कोई आपको बोले आके कि बी के पास जो स्टोन्स थे बी ने ए को दिखाए थे, हमारा माइंड अपने आप ये प्रिजम्पशंस ले लेगा कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, ये काम हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट मिसकंडक्ट। ए ने बी को बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलेट किया इन पब्लिक, ए ह्यूमिलेटेड बी इन पब्लिक। तो यहाँ पे ए के ह्यूमिलेशन की वजह से बी के पास मोटिव आ जाता है कि वो ए से बदला ले। फॉर द रिवेंज बी कैन टेक रिवेंज फ्रॉम ए जस्ट बिकॉज ए ह्यूमिलेटेड बी। फॉर दैट रिवेंज बी makes some preparations. For example, if he makes some preparations, he wants to humiliate A, then he will find the occasion to humiliate him, make some preparations and previous or subsequent conduct. वो बाद में भी कर सकता है वो काम, और वो किसी पुराने काम का भी बदला ले सकता है। तो अगर आपके पास मोटिव है, आप प्रिपरेशन करते हो, तो ये सब चीज़ें भी एक फैक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी का मर्डर करने वाला है, ए ने बी के मर्डर के लिए अपने पास पहले से प्रिपरेशंस करना स्टार्ट किया। उसने बी के मर्डर के लिए उसने बी के टाइमिंग्स को नोट करना स्टार्ट किया, बी कब कहाँ जाता है, कैसे जाता है, किसके साथ जाता है, कहाँ उसका ऑफिस है, कहाँ उसका घर है, उसने सब चीज़ें निकाली उसकी। जब वो इस चीज़ को नोट डाउन कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं बी की प्रिपरेशंस आई होंगी, वो उसको फॉलो कर रहा होगा, उसके घर के सामने उसने कैमरा लगाया होगा या किसी ना किसी से उसकी इंक्वायरी कर रहा होगा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं से एक फैक्ट निकल कर आएगा, वो दैट इज़ अ प्रिपरेशन। चलो, उसने उसके सारे टाइमिंग्स को नोट डाउन किया, उसके बाद वो उसका मर्डर कैसे करेगा, उसे शूट करेगा, उसे पॉइजन देगा, या उसे बीट करके मारेगा, या उसे धक्का देगा कहीं से। तो जो भी वो काम करेगा, जो भी उसका प्लान है, उसके लिए वो प्रिपरेशन ज़रूर करेगा। कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशंस जो हैं आपके रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में काम आते हैं। कहीं से आपको पता चलता है कि ए ने ये काम किया था, तो वो आपके फैक्ट इन इश्यू को प्रूव करने के लिए आपके काम आ सकती हैं। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा कि जो फैक्ट्स हैं, जो एविडेंस हैं, वो हमारे लीगल हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, रेलिवेंट हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था कि एविडेंस जो है ओरल भी होते हैं और डॉक्यूमेंट्री भी होते हैं। ओरल एविडेंस कैसे हो सकते हैं? ओरल एविडेंस हो सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एविडेंस कौन से होते हैं? जो रेस गेस्टे होते हैं। रेस गेस्टे मतलब जो आपने अपने आप से सुना, अपने आप से देखा, अपने आप से फील किया, अपने आप से उसे टेस्ट किया। यानी कि when witness itself can say I heard this, I see this, I feel this, that evidence is known as direct evidence. When we say about hearsay statement what is कही सुनी बातें। जब bystanders ने देखा कि A B को मार रहा है, तो उस समय B को जब A B को मार रहा है, बाईस्टैंडर्स ने देखा, बट बाईस्टैंडर्स के बाद जो लोग आए उन्होंने नहीं देखा कि वहाँ क्या हुआ, बट कहा सुना उन्होंने सब सुन लिया, ट्रांजैक्शंस पता कर ली कि यहाँ ये हुआ था।
बट वो लोग जो स्पॉन्टेनियस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, उन लोगों के मुंह से कही बातें डायरेक्ट एविडेंस के अंदर कवर नहीं होंगी. दे इट विल बी इनडायरेक्ट एविडेंस बिकॉज विटनेस हैज़ नॉट सीन इट, विटनेस हैजंट हर्ड इट, विटनेस हैजंट फेल्ट इट. हम क्या डायरेक्ट एविडेंस के होते हुए इनडायरेक्ट एविडेंस एक्सेप्टेबल है? नो. अगर आपके पास डायरेक्ट एविडेंस है तो इनडायरेक्ट एविडेंस आपको एक्सेप्टेबल नहीं है. सिमिलरली in documentary evidence also, primary best evidence, secondary evidence. Primary is also known as best evidence. Primary is the evidence which is conclusive or which is most related to the fact in issue. For example, A B के घर गया, ए बी के घर गया, ए बी के घर गया, तो वहाँ पे जो उनकी रजिस्टर की एंट्री है या फिर जो उनके कैमरे के प्रूफ हैं, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, जो वो फुटेज हैं, दैट विल बी द प्राइमरी एविडेंस. बट अगर हम किसी भी तरीके से वो फुटेज या फिर वो रजिस्टर की कॉपी नहीं सबमिट करवा पाते हैं, तो आसपास के लोगों से जो हम पूछेंगे, जो पूछताछ, जो इंक्वायरी करेंगे, दैट विल बी द सेकेंडरी एविडेंस. सो प्राइमरी एविडेंस इज द बेस्ट एविडेंस. अगर आपके पास बेस्ट एविडेंस अवेलेबल है तो सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा. सेकेंडरी एविडेंस इज एक्सेप्टेबल तो प्राइमरी एविडेंस ही. सेकेंडरी एविडेंस जब भी एक्सेप्टेबल होगा जब आपके पास प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा. सो दिट्स ऑल अबाउट द एविडेंस. To know more about the Evidence Act, stay tuned and please share, subscribe my channel if you like the video. Thank you.